Good morning, students. Today, this is the last part, or you can say last video of p block element. Today we will discuss about the interhalogen compounds and group 18. जो रह गया था आपका ग्रुप 18 कंपाउंड्स आज हम पढ़ेंगे. So let's see what are the interhalogen compounds. When two different halogen react with each other, interhalogen compounds are formed. They can be assumed general composition as XX dash, XX, 3 dash, XX, 5 dash, and XX, 7 dash, where X is the larger, halogen according to size, or X dash is the halogen of a smaller size. X dash is the halogen of a smaller size, whereas X is the halogen of larger size. Preparation. How we can prepare these interhalogen compounds? Preparation means the interhalogen compounds can be prepared by the directly combination or by action of halogen on lower interhalogen compounds, just like as, for example, Cl2 plus F2. 2,4 क्या बनेगा जब क्लोरीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो आपका बन जाएगा 2ClF. दिस वन इज द इंटरहैलोजन कंपाउंड. यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही कैसे हैं? दे आर इन द इक्वल वॉल्यूम. ये दोनों इक्वल वॉल्यूम के अंदर है. दूसरा देखते हैं, when chlorine Cl2 plus fluorine F2, 3F2 gives 2ClF3. Here this one is in the excess amount, means यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है. फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और उसका इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाता है. सिमिलरली I2 plus Cl2 gives 2Cl, means they are in equal volume के अंदर है. And in another one, I2 plus 3Cl2, it gives 2Cl, means here chlorine is in excess. यहाँ क्लोरीन जो है वो अधिकता में है. एंड अनदर वन, और एग्जाम्पल देखें तो ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन. यहाँ ब्रोमीन जो है, फ्लोरीन को हमने क्या किया? डाइल्यूट किया हुआ है वाटर के द्वारा. डाइल्यूटेड विद वाटर. तो ये क्या बनेगा? ये बनता है BrF3. So by this way, another one, एक और लिखते हैं Br2
प्लस F2 और वो भी कितना 5F2, यानी यहाँ पर फ्लोरीन क्या है एक्सेस में है, क्या बन जाएगा 2BrF5, ठीक है जी। तो जिस तरीके से क्या बनाते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को बनाते हैं। लेट्स सी, दिस वन इज द प्रिपरेशन। लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज, so this one is the properties. There is a type, formula, physical state and color, and the structure. First type is XX1 dash. There is a some interhalogen compounds just like a CLF, which is a colorless gas and there is no structure. PRF, pale brown gas, no structure. IF, detected spectroscopically, no structure. BRCL, it is in gaseous state, no structure. ICL, ruby red solid, that is the alpha form, have no structure. And IBR, that is black solid, no structure. CLF3. Now another type XX3 dash. So first one is CLF3, colorless gas, और इसका जो शेप होता है बैंड टी शेप. Another one BRF3, yellow green fluid, band T shape. IF3, that is yellow powder, band T shape. And ICL3, this one is orange solid and it is present in band T shaped. ओके, इसके अलावा एक टाइप बचता है आपका XX-7, तो उसको मैं यही ले लेता हूं XX-7, इसको क्या करते हैं XX7 और यह रहेगा IF7, यानी यहां पर इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो भी 7 है. ये कैसा होता है कलरलेस गैस, और इसका स्ट्रक्चर होता है आपका पेंटागोनल और बाइपिरामिडल. इट हैज पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. नाउ these all are covalent molecules and are dimagnetic in nature. Students, these are all covalent molecules and are dimagnetic in nature. They are volatile, solid or liquids except CIF. पहला XX1 dash type के अंदर था CIF, which is a gas at 298 Kelvin. वो क्या है गैसियस स्टेट के अंदर मिलता है. एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं थोड़ा ज्यादा होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इट्स यूजेस. अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो दे कैन बी यूज एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट. इनका प्रयोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में हम करते हैं. एंड दे आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. और ये बहुत ही यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मीन्स इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. एंड CIF3 and BRF3 are used for the production of UF6 in the enrichment of uranium 235, यानी यूरेनियम 235 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. उसके एनरिचमेंट में हम CIF3 और BRF3 का प्रयोग करते हैं. सो दैट इज ऑल ओवर अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ग्रुप 18.
Now, noble gases. These gases are in the group 80 and these are very inactive because they have complete valence shell. So इसके अंदर क्या देखते हैं, एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनकी स्टेट किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन. इसके लिए निमोनिक है इना, नीना और करीना, एक्स-रे रंगीन. एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86. And helium is present in the gaseous state. ठीक है, all are present in the gases. ये सब की सब gases. बस ध्यान क्या रखना है, ये दे हीलियम एंड नियॉन, इनको ध्यान रखना है. इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है जिसके कारण, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट और यूनिक प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दे हीलियम एंड नियॉन दे डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट्स. ये क्लैथरेट्स नहीं बनाते, बाकी ये सब क्लैथरेट्स बनाते हैं. ठीक है, क्लैथरेट्स का मतलब क्या होता है, केस कंपाउंड. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. केस कंपाउंड्स, और इन सब की खास बात यह है कि दे हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं. whereas except helium, in the case of helium they have 2 electrons and known as duplet. अब इनको इसके साथ रखा क्यों गया है, इसको कहाँ होना चाहिए था, एल्कली मेटल्स के साथ, एल्काइल मेटल के साथ होना चाहिए था. एल्कली मेटल आ गया आपका हाइड्रोजन, एल्कली मेटल में आ गया, उसके बाद ही होना चाहिए था हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 को होना चाहिए था. लेकिन चूंकि इनकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैसेस के साथ मिलती है, इसलिए इनको उसको हीलियम को कहाँ रखा हुआ है, नोबल गैसेस के साथ ही रखा हुआ है. बात करते हैं अकरेंस की, कहाँ पाए जाते हैं. So, occurrences of noble gases. All the noble gases except radon. All the noble gases except radon occur in atmosphere. रेडॉन को छोड़कर सारी जो गैसेस हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, हीलियम और कभी कभी नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ऑरिजिन ऑफ पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट. यानी दीज ऑल आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. इनके अंदर कभी कभी क्या हमको हीलियम और कभी कभी क्या मिलती है, नियॉन देखने को मिलती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is NS2 NP6 except helium. हीलियम का क्या होता है, 1s2. ठीक है जी. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर NS2 NP6. All these are the p block elements and have 8 electrons in its outermost shell. Then ionization and therapy. Second one is
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है. दीज गैसेस exhibit very high ionization enthalpy and it decreases down the group with increase in atomic size. अगर हम इनकी बात करें तो पहले आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन. पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हीलियम एक ऐसी नॉर्मल गैस है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होती है. लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनका एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस. थर्ड वन एटॉमिक रेडियस. डाउन द ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है. क्या होता है जी, इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है. नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होती है इनकी, चूंकि ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, दे हैव कंप्लीटेड ऑक्टेट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनकी पॉजिटिव होती है. नोबल गैसेस हैव stable electronic configuration, they have no tendency to accept the electron, so have large positive values of electron gain enthalpy. आप देखिए क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, जो शीट है उसमें अलग से हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते. इसलिए क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. Because it has complete fixed octet, so electron gain enthalpy of noble gases are positive. Now physical properties. All the noble gases are least reactive. All the noble gases are मोनोएटॉमिक. कैसे होती है जी, मोनोएटॉमिक है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड tasteless, and they are sparingly soluble in water. Sparingly soluble in water. पानी के अंदर बहुत तेजी से घुल जाती है. They are sparingly soluble in water, whereas helium has the lowest boiling point of any other noble gases. Boiling point helium का क्या होता है, सबसे कम होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है. हैं जी. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी. नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव. केमिकल they are least reactive. They noble gases except helium have completely filled NH2. Electronic configuration होता है NH2 NP6. Electronic configuration in their valence shell. इसका कारण क्या है, noble gases क्यों least reactive हैं, ये क्रिया नहीं करती. पहला कारण है complete
valence shell, and the second one is they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. High electron gain enthalpy, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है जी। नाउ एक टर्म हमने बताई थी आपको, कैथरेट्स। ये क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग ग्रुप 18 और नोबल गैसेस। कैथरेट का मतलब होता है केस कंपाउंड्स, यानी केस होता है जिसके अंदर पक्षियों को, जिसको क्या कहते हैं, पिंजरा, यानी पिंजरे वाले यौगिक। कैथरेट्स कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस इन विच दे आर ट्रैप्ड विद इन द कैविटीज ऑफ क्रिस्टल लैटाइस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं कि लेटाइस के बीच में, किसके, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बीच में क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं। एंड फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड, दैट इज XePtF6 ड्राइव्ड फ्रॉम, कहां से ड्राइव किया, O2PtF6। ये कैसा होता है? रेड कलर का कंपाउंड था। वाज प्रिपेयर्ड बाय केमिस्ट नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने सबसे पहला कंपाउंड इसका हेलोजन्स का, सॉरी नोबल गैसेस का क्या किया था, प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? O2PtF6, जो कि रेड कलर का होता है। कैसे लिया, इसकी इक्वेशन देखेंगे। O2PtF6 के ऊपर किसकी, जीनोन की, क्योंकि जीनोन के ही कंपाउंड्स है, बस केवल जीनोन की क्रिया की, तो क्या बन गया, XePt और F6 ये ऑब्टेन हुआ। यानी O2PtF6 यहाँ क्या देता है, दिस O2PtF6 gives PtF6 और वो भी क्या देगा, माइनस। ठीक है, और O2 प्लस, उसके बाद क्या हुआ, दिस Xe पॉजिटिव प्लस PtF6 टू फॉर्म XePtF6। क्या बनाया, XePtF6। इस जीनोन में क्या बनाया, PtF6 के साथ कंबाइन होकर XePtF6 बनाया। दिस वन इज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। किसका है, जीनोन, जीनोन के कंपाउंड्स हैं। एंड बार्टलेट नोटिस दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन दैट इज नियर अबाउट 1175 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वाज वेरी क्लोज टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन। यानी किसकी क्लोज थी, 1170 किलो जूल पर मोल। ये ऑक्सीजन की थी और ये जीनोन की थी, तब जाकर के ये पॉसिबिलिटी हुई कि ये कंपाउंड बना। नाउ रिएक्शन ऑफ जीनोन। क्योंकि जीनोन के ही कंपाउंड नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी और किसी गैस के कंपाउंड नहीं मिलते। आगे आ जाएगा रिएक्शन ऑफ जीनोन। जीनोन रिएक्ट करता है इसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ रेशो है 1:1, तो बनता है आपका XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड। अनदर वन, यहाँ पर रेशो फ्लोरीन का रखा हमने 1:5, तो बनेगा आपका XeF4 और
रेशियो रखा 1:20, तो बनेगा आपका XeF6। यानी जैसे जैसे रेशियो बढ़ा वैसे वैसे कंपाउंड्स चेंज होते चले गए। ठीक है जी, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन एंड रेडिली अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस पर ये क्या देते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ xenon कंपाउंड। हाइड्रोलाइसिस के ऊपर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट वन इज जैसे XeF6 और हाइड्रोलाइसिस यहां से निकल जाएगा आपका 2HF और क्या जाएगा XeOF4। ठीक है जी, फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, यहां से भी क्या निकल जाएगा 2HF और इट गिव्स XeO2F2। अगेन और हाइड्रोलाइसिस यहां से भी 2HF बाहर निकल जाएगा और we obtain XeO3 और हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स these compounds। HF बाहर निकल जाता है, ठीक है, एंड और क्या बनता है, क्या बनता है XeO3 लास्ट प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ टेट्राफ्लोराइड, क्या रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड, ये लास्ट है आपका रिएक्शन ऑफ टेट्राफ्लोराइड। ये है जी आपका XeF4, ये रिएक्ट करेगा, इसको यदि हम बेंजीन के साथ इसको गर्म करते हैं और हीटिंग इट गिव्स XeF2 प्लस F2 फ्लोरीन और देता है आपका कंपाउंड देता है। यदि हम इसको बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन, इट गिव्स फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन देता है। एंड O2F2 के साथ it gives XeF6 प्लस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ऑक्सीजन गैस को अलग कर देगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ it gives XeO2 plus SiF4 and antimony SbF5 टेट्राफ्लोराइड के साथ it gives XeF3 and antimony hexafluoride आयन बनाता है, antimony hexafluoride आयन SbF6 and PF5 फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड के साथ it gives XeF3 प्लस and PF6 phosphorus hexafluoride minus, whereas it reacts with hydrogen fluoride to form XeF3 plus and HF2 minus। ठीक है जी, तो these are the reactions of xenon tetrafluoride। पहला, अगर हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं तो XeF2 यानी फ्लोरीन को बाहर निकाल देता है और बेंजीन के साथ रिएक्ट करने पर फ्लोरोबेंजीन देता है। O2F2 के साथ रिएक्शन करने पर XeF4 अपना कंपाउंड XeF6 बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देगा। Whereas it reacts with silicon dioxide to form silicon tetrafluoride and XeO2, whereas it reacts with antimony pentafluoride to form antimony hexafluoride। उसको क्या कर देता है, आगे चेंज कर देता है SbF6 के अंदर। एंड when tetrafluoride, xenon tetrafluoride reacts with
phosphorus pentafluoride, it gives phosphorus hexafluoride, and when it reacts with HF तो उसको भी क्या करता, HF2 के अंदर चेंज कर देता है. So students, today we have completed P block element by this way. In next video we will start D and F block element. Okay, and D and F block element is your last topic for your half yearly examination. So इस वीडियो में केवल इतना ही. Have a nice day.